Good morning, everyone. Today we are here to learn lesson number 3, chords and their importance. It is of standard 7th subject social science and semester 2. Here we'll learn about the chords as well as their importance. Why chords are necessary in India, which type of chords, which type of cases are heard in courts, who works in court, and different terms related to the judicial system that we'll learn in this lesson. So let us start. Here, first of all, a short story in the ancient time how justice was imparted. So let us see that. You can see in the picture. It was a story where a king who lived in a big state and he was ruling that state in a small village. During the evening time, one day in the winter season, washerman and his wife, they were washing clothes on the river bank, and they were living their life very happily. One evening, as they were washing the clothes, at that time a bullet was fired from a gun, and that bullet hit straight into the chest of the washerman. The washerman died on the spot. Now washerman's wife was helpless. He did not know what to do. Next day he went for the justice to the king, and you can see in the picture she was arguing, putting her points in front of the king. King listened to her very carefully and said that we'll investigate. Whoever has fired that bullet will not be spared. So investigated and found out that it was no other than her queen fired that bullet from the gun, and accidentally that bullet hit the washerman and he died. It was not intentional. She was doing that work for hunting. So she wanted to kill the animal, but instead it was the washerman who died on the river bank. In that story, lastly a question was asked in Think, what was the verdict of the king? राजा ने क्या डिसीजन, क्या जस्टिस दिया होगा उस अबला नारी को? So there may be two ways. If the king is honest, he would find out who has fired that bullet, and second, अगर वो डिसऑनेस्ट होगा तो वो शायद वो मैटर को वही रफा दफा कर देगा. अगर वो ऑनेस्ट होगा तो उस लेडी को कंपल्शन के रूप में काफ़ी सारे सोना मोहरे या पैसे भी दिए होंगे, जिसके वो अपना बचा हुआ लाइफ अच्छे से स्पेंड कर पाए, और जो कोई भी दोषी पाया जाए उसे पनिशमेंट मिली होगी. सो रिलेटेड टू दैट देयर वाज एन स्टोरी. In the picture you can see there is a lady, goddesses, her name is Austin. ये कहा जाता है कि goddesses Austin is the symbol of justice, goddesses of justice. What is special about this idol? In one hand there is a balance, and in another hand there is a sword. Sword indicates that whoever found culprit, जिसने भी क्राइम किया होगा उसे पनिशमेंट मिलेगी. बैलेंस इंडिकेट दैट जो कोई भी केस हो उस केस में दोनों तरफ से सारी बातें सुनी जाएगी, सारे प्रूफ्स देखे जाएंगे, उसके बाद ही जस्टिस मिलेगा. शी हैज़ हर आइज़ ब्लाइंड फोल्डेड. ये आपने पिक्चर में भी, फिल्म में भी देखा होगा, कानून अंधा होता है. इट मीन्स इट टेक्स टाइम. वो किसी की भी तरह पार्शियल नहीं होता, वो सभी को एक ही नज़रों से देखता है. दैट इज़ वाइट इज़ देयर. सो नाउ लेट अस सी, रीड एंड अंडरस्टैंड. आवर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. यस, दैट्स राइट. वी आर फ्री under our rights to follow any religion, do whatever we like. There is a freedom of speech.
and many other rights we have. That's why it is democratic. Our judiciary of our country is independent and unbiased. कोई भी कोर्ट हो, हाई कोर्ट, तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो किसी के भी प्रेशर में आके काम नहीं करता. सारे जो जजेस हैं दोनों पक्ष की दलीलें सुन के ही सच के बारे में आइडेंटिफाई करके जस्टिस देते हैं. वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई का प्रेशर नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर या कोई लीडर का प्रेशर बिल्कुल नहीं होता. Those who do not abide the law are considered criminals. जो लॉस को फॉलो नहीं करते, उन्हें ब्रेक करते हैं, वो क्रिमिनल्स कहलाते हैं. एंड सच क्रिमिनल्स डिप्राइव्ड other people from their rights. Our country has the benefit of judicial at all levels. चाहे वो छोटा गांव हो, स्टेट हो या कोई भी प्लेस इंडिया में हो, वहाँ पे जुडिशियल सिस्टम कोर्ट्स होते हैं. 3 लेवल, तालुका कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या स्टेट लेवल, ये सारे कोर्ट्स. स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होता है. जजमेंट आर गिवन ऑन सिविल केसेस, जो हमने पहले भी बात की. हाउस रिलेटेड, लैंड रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस होते हैं, वो सिविल होते हैं. क्रिमिनल केसेस होते हैं जिसमें किसी को मारना, किसी को धमकाना, लूटना, ये सारे केसेस क्रिमिनल केसेस होते हैं. लोक अदालत भी है जिससे स्मॉल विलेज में कम खर्चे में पूरा जस्टिस सबको इजीली मिल पाए. सबसे नीचे तालुका कोर्ट, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबसे ऊपर स्टेट में हाई कोर्ट. और इंडिया की बात करें जो सबसे ऊपर का कोर्ट वो है सुप्रीम कोर्ट. दैट्स व्हाट इट इज़ शोन. द कोर्ट एट द लोअर लेवल, तालुका कोर्ट. तालुका कोर्ट का दूसरा नाम ट्रायल कोर्ट्स भी है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके ऊपर आता है. एंड द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ द हाई कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोर्ट हैं, उनमें हेड होता है हाई कोर्ट. हियर इट इज़ अ पिक्चर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ गुजरात. हंसाबाज लैंड, ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है कि एक स्मॉल टाउन में एक लैंडलॉर्ड रहता है. वो काफ़ी पैसे वाला होने के कारण उन्होंने काफ़ी सारी ज़मीन खरीदी होती है. और जो भी ज़मीन के दूसरे कोई मालिक की ज़मीन अगर उसके पास हो तो वो उसे छीन लेता है किसी भी तरह से. तो वैसे ही एक लेडी है हंसाबा जो काफ़ी ओल्ड एज में है, जिनकी ज़मीन उस लैंडलॉर्ड की ज़मीन के नज़दीक है. एंड द लैंडलॉर्ड स्नैच हर लैंड ऑल्सो. शी अपील्स इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोनों ही सारी आर्ग्यूमेंट जज के सामने रखते हैं और हंसाबा को फिर अपनी ज़मीन वापस मिलती है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना केस वो जीत जाते हैं. जो हमने बात की पहले, वो सिविल केसेस तालुका कोर्ट में उनकी सुनवाई होती है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल केसेस की सुनवाई होती है. Now let us learn about High Court. The highest court in our country is the Supreme Court. Every state has a High Court. The High Court of Gujarat is in Ahmedabad. सारे जो जजेस हैं वो हाई कोर्ट में मैटर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसाइड करते हैं. All the high courts are uniform and are called court of records. Court of records कहा जाता है हाई कोर्ट्स को. There are other judges to help the main judges. Anyone has the right to appeal in the high court. But if the court finds that you are wasting court's time, then you will be penalized और आपको पनिशमेंट मिलती है. Another short story about judgment of गब्बर. एक छोटा सा विलेज रानपुर, जिनके मुखिया थे लालजी मुखी, सरपंच हेड थे वो. एक दिन जब वो शाम के टाइम पे घर वापस आ रहे थे तो एक गाड़ी उनके सामने रुकती है. कुछ लोग नीचे उतर के सीधा उनके ऊपर अटैक करते हैं. उन्हें काफ़ी
ज़्यादा ज़ख्मी कर देते हैं, जिससे लालजी मुखी फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करते हैं। वो जो मेन आदमी था उस कार में, वो गब्बर एक रुफियन यानी कि एक बैड मैनर्स वाला गुंडे जैसा एक आदमी था, जिनके खिलाफ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस किया। अनफॉर्चुनेटली दोनों की सुनवाई के बाद वो केस गब्बर जीत गए और लालजी मुखी हार गए। इससे क्या हुआ कि अब गब्बर उन्हें काफ़ी ज़्यादा और परेशान करता है, काफ़ी धमकियाँ देता है उन्हें लूटने की, मारने की। तो इन सब से वो फेड अप हो गए और उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में दोनों की सुनवाई हुई। गब्बर ने सारी आर्ग्यूमेंट्स रखी और लालजी मुखी ने सारी जो सच्चाई थी वो बताई प्रूफ के साथ। तो हाई कोर्ट में लालजी मुखी को जस्टिस मिलता है और गब्बर को फिर जेल में उन्हें डाल दिया जाता है। तो दैट मीन्स दैट इफ़ यू डू नॉट गेट जस्टिस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, आपको तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर जस्टिस नहीं मिलता तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और वहाँ पे भी जस्टिस ले सकते हैं। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो हमें सबसे पहले पुलिस स्टेशन में लिखवानी पड़ती है। उनके बाद अगर पुलिस को वो लगता है आदमी के क्रिमिनल है, उन्होंने गलत किया, तो वो उन्हें जेल में डाल देती है एंड फिर वो केस की सुनवाई होती है। नाउ अनदर शॉर्ट स्टोरी अबाउट जुगनू। जुगनू एक ऐसा आदमी था जो किसी को भी लूट सकता था, किसी को भी वो मार सकता था। उसके पास इतनी पावर और हिम्मत थी। तो उस गांव में कोई भी उनके खिलाफ कुछ बोलता नहीं था। उस गांव में एक दिन एक सोशल वर्कर जाता है जो उनके बारे में पूरी डिटेल जानता है और वो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करता है। वाई दैट सोशल वर्कर वेंट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ताकि वो जो जुगनू है उससे, उसके आतंक से सबको बचाया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली जुगनू के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है और इसी के कारण जुगनू फिर बाइज्जत बरी हो जाता है। उससे कोई पनिशमेंट नहीं होती और वो और ज़्यादा सबको परेशान करने लगता है। ऐसा हुआ क्योंकि गांव के लोग जुगनू से डरते थे और उनके खिलाफ कोर्ट में उन्होंने गवाही नहीं दी। अगर शायद गवाही दी होती तो केस जुगनू हार जाता और उससे काफ़ी बड़ी पनिशमेंट भी मिलती, पर ऐसा नहीं हुआ। यस, कुछ टर्म्स हैं, उनके मीनिंग्स हमें समझने हैं। देन व्हाट हैपन्स, where to file case, what to do. At last, courts pass judgment. When a court has to investigate the matter minutely to avoid injustice, a case gets delayed. अगर कोर्ट में जो जज है वो ध्यान से सारे प्रूफ्स को अगर वो देखना चाहता है एंड अगर वो माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहता है कि कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है, तो उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। एंड दैट इज़ वाई इन इंडिया द केसेस आर हेल्ड फॉर मैनी ईयर्स इन द सेम कोर्ट। एक ही कोर्ट में वही केस काफ़ी सालों तक चलता है और उसी के कारण लोग कोर्ट का कम उपयोग करते हैं। टू रिड्यूस द वर्कलोड वी हैव लोक अदालत्स इन द स्मॉल विलेजेस where people get speedy justice. So this was the lesson number 3, courts and their importance. I hope you have understood it properly, and thanks for watching the whole video.